بہت ہی سوال ہوں گے. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آج جو ہم سب سارے جماعتیں بیٹھے ہیں، ہمارا جو اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم کل سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں. ہم ایک دن چین سے نہیں بیٹھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے یہی جماعتیں نے آپ کو MRD تحریک دکھائے تھے اور ARD کا موومنٹ چلائے تھے، اب ہم اس سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف تحریک کے لیے نکل رہے ہیں، اور امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے. ہر طبقے کے پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے، تاکہ جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا کوشش ہے کہ ہم ایک حقیقی پاکستان میں حقیقی جمہوریت دیکھیں، وہ ہمارا گول ہے. اور اس اوکیزن پہ اس APC کا جو ایک ہمارا دو سب سے بڑے پاکستان کے جو لیڈرز ہیں، صدر زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب، پورا نہ صرف انہوں نے ہم سے تقریر کیا مگر پورا APC میں وہ موجود تھے، اپنا تجویز دیتے رہے، اور ان کے طاقت کے ساتھ، ان کا سرپرستی کے ساتھ ہم سب مل کے اس مشن کے لیے نکل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت کے دن اب گننے شروع ہو جائیں گے. آپ کے سوال وقار ستی وقار بھائی، سر ایک منٹ سر ایک سوال ایٹ اے ٹائم. آپ بھی ہے، ہم بھی ہے، آپ دیکھیں گے ہم سب یونائٹڈ بھی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ اس تحریک کو چلائیں گے. اور جو بھی ہم میں سے اس ڈاکیومنٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں یا ہمارے کمٹمنٹ کے سے پیچھے ہٹتے، تو آپ ہمارا حساب لیں. ایک سوال انشاءاللہ طے کر لیں گے. ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ، ایسے نہیں ہو سکتا. میں باری باری آپ بات کرو. جی ایک منٹ. ہم سب جو APC میں شریک تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا، صدر زرداری صاحب کا، یہ سارے جماعتیں کے ہمارا کنسنسس ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے ہے. یہ ہمارے موقف ہے. اور جیسے میں نے اپنا سٹیٹمنٹ میں، اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کہا، ہم نہ صرف اس حکومت کے خلاف مگر اس حکومت کے سہولت کاروں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. جی خالد صاحب بات کریں. ہم نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارا ریزولوشنز آف پلان و ایکشن آپ کے سامنے رکھا ہے، ہم یہ دونوں جمہوری آپشنز ہیں. ہم میں سے کوئی غیر جمہوری آپشن استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے. جمہوری آپشنز جو ہے، جمہوری آپشن ہے احتجاج، جمہوری آپشن ہے پارلیمان میں عدم اعتماد، اور جمہوری آپشن ہے استعفیٰ. سارے کے سارے جو آپشنز ہیں ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی شاکر بات کریں. اکتوبر اناؤنس کیا، ہر ڈیٹ اناؤنس کیا. جی نہیں، میں ذرا آپ ذرا الفاظ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، میں جواب دے دیتا ہوں اس کا. جی تو دیکھیے، آپ نے ہمارا پورا پلان دیکھ لیا ہے کہ اکتوبر میں ہم کیا کر رہے ہیں، نومبر میں کیا کر رہے ہیں، دسمبر میں، جنوری تک. جو اب رہی بات عدم اعتماد کا آپشن ہے، استعفوں کا آپشن ہے، اس کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس پر ہوم ورک کر
उसका तजावीज़ मुरतब करके पार्टी लीडर्स के सामने पेश करेगी और वो जब तय हो जाएगा तो उसी के मुताबिक अमल होगा इंशाअल्लाह। जी एजाज बात करें। नहीं है जी, नहीं। इंशाल्लाह मौलाना साहब तो अब पहले अकेले शुरू हुआ था, अब हम सब मिलके शुरू कर रहे हैं और हर मौके पे, हर पोजीशन पे, हर जगह पे हम साथ होंगे। जहाँ तक पार्लियामान है या अदम एतमाद है या पार्लियामान में क्या जो पोजीशन है उसके बारे में हम सब ने काफ़ी सीखा है और इसलिए हमारा ये कमेटी जो सीनियर लेवल कमेटी है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, सही टाइम पे सही नंबर्स के साथ वो फैसले करेंगे कि कहां हमने और कब हमला करना। मौलाना साहब से बात हो गई है और तय हो गया कि अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, ये तय हो गया। मतीउल्लाह साहब, मतीउल्लाह जान, मतीउल्लाह साहब मैं आपको दे रही हूँ इसके बाद आप पहले बात। यही हमारा जो एहतजाज है, जो हमारा पॉइंट्स है आपके सामने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल सियासत में या जो भी उनका डोमेन में नहीं होगा, ये सब हमारा मुतालबा है और हम ये मुतालबा अवाम के सामने रखेंगे, अवाम के साथ मिलके उनके सामने भी रखेंगे, पार्लियामान में भी यही आवाज़ उठाएंगे और ऐसे ही। इसका माना ये है कि आज जितना तकरार के साथ एस्टेब्लिशमेंट का सराहत के साथ जिक्र हुआ है, आपके नजदीक अभी नाकाफी है। मतीउल्लाह साहब बात करें। एक मिनट मतीउल्लाह साहब आप बात करें। जी मतीउल्लाह जान साहब, हमने सब आज का एपीसी में आपका बहादुरी का सराहा और जो जर्नलिस्ट के साथ और मीडिया के साथ हो रहा है उसको भी कंडेम किया। ओके, जहाँ तक पीटीआई है या पीटीआई के अंदर से कोई और है, मैं समझता हूँ कि ये जो -1 का फॉर्मूला इमरान खान साहब ने खुद इसका जिक्र किया, आप अपोजिशन का जो मौक़िफ़ होना चाहिए वो जमहूरी होना चाहिए और हमें एक जमहूरी ऑप्शन हमारे सामने रखना चाहिए। किसी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को एक और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ हमने एक्सचेंज नहीं करना। जहाँ तक सियासी बात किसी फौजी की आदत के साथ, वो तो आइन कहता है हो नहीं सकता, आइन के मुताबिक उनके ओथ के मुताबिक वो तो हो नहीं सकता है। जो भी इस टेबल पे बैठे हैं हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अब हमारे ऊपर है कि हमें इस पे अमल करना पड़ेगा। जी परवेज बात करें, सियासी बातों पे नहीं, परवेज साहब बात करें, नहीं सिक्योरिटी इश्यूज पे बात हमें ट्रायल करे। अगर परवेज बात करें, 1 मिनट, ऐसे नहीं जी, 1 मिनट, बारी बारी।
जहाँ तक ये हमारा मूवमेंट है, हम इसको IJI के बजाय MRD और ARD के साथ मिलाते हैं, और हम सब जो 90s में हुआ है या जो माजी में हुआ है, हम सब ने उससे सीखा है, उसके नतीजे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया है। उसका इसलिए कि हम वो गलतियों के से सीखे जो है, हमने ये 18th अमेंडमेंट भी किया था, हमने जमहूरियत को बहाल भी किया था, तो हम माजी के कुछ जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। और हम अगर मुतालबा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ना हुक्मरानों के साथ उनका मदद होना चाहिए और ना अपोजिशन के साथ। हम गैर सियासी इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं। सनाउल्लाह डॉन, सनाउल्लाह साहब, एक सेकेंड, सनाउल्लाह डॉन। सर एक तो आप गलत हो, 36 मेंबर्स सिर्फ एक मिनट। जहां तक 36, ये 36 का नंबर मैंने बहुत सुना है। ये 36 पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बागी मेंबर्स नहीं है। ये जो मेंबर्स है, इनमें से खुर्शीद शाह साहब है जो कि आज जेल में है। इनमें से हमारा जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है, तो जो टेस्ट उनके पॉजिटिव निकले हैं वो है। मैंगो साहब मुल्क में नहीं है। अब कुछ इट्स नॉट, ये कोई साजिश नहीं था। हम आपके सामने पूरा क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब सब उस हाउस में मौजूद था। हम चाहते थे कि हमारा वोट्स का रिकाउंट करे। शहबाज शरीफ साहब और मैं चाहते थे कि हम बोल सके। मेरा तो ख्वाहिश हो सकता है शहबाज शरीफ साहब बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उसको तो हक है। हमें अपना हक नहीं दिया गया, ना ही वो लोग काउंट किया गया। आप सबने टीवी स्क्रीन पे देखे, शहजाद अकबर का वोट नहीं है, वो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है, वो एक एडवाइजर है, मगर गिनती के वक्त वो वहां था और वो वहां खड़ा था। तो जब धांधली की जाती है तो आपको इंसाफ के साथ रिपोर्टिंग करना चाहिए, और इसको ऑपोजिशन का शिकस्त के बजाय धांधली का जिक्र करना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा फोरम पे जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में आपके सामने धांधली हुआ है। यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। खातून साहब जी, मैं दे रही हूँ जी। खातून जी होगी कि सवाल एक एक करें ताकि ये जी खातून साहब जी, एक मिनट जी, एक सेकंड जी, खातून बात करें जी। हमने हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों को जमहूरी तरीके से उनका मुकाबला किया है। हम जमहूरी तरीके में बिलीव करते हैं, चाहे वो हमारा एहतजाज हो, चाहे वो हमारा डायलॉग हो, हम जमहूरी तरीके अपनाते हैं। मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, हम बंदूक के जोर पे ना सियासत करते हैं ना एहतजाज करते हैं। हम जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी कुव्वतों को कायल करते हैं। जी एजाज साहब, एक मिनट, एक सेकंड, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। एजाज साहब एजाज सवाल करें प्लीज। I can't hear to it. एक मिनट जी, एक मिनट भाई, एजाज बात करें। खत्म हो गई है। और बिल्कुल देखें, वी ऑल लर्न आवर लेसन फ्रॉम द पास्ट। सब ने सबक सीखे हैं, और आज आप देखते हैं कि बिल्कुल एक सिंसेरिटी ऑफ पर्पस सब यहाँ बैठे हैं और एक कॉज के लिए बैठे हैं, फॉर द नेशनल कॉज। और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बस शुक्रिया। थैंक यू।